Yes, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So yesterday we were discussing about contract of sale of goods. Under that, we had discussed about KV tempter and what are the various, what is the meaning of the term KV tempter, and what are the various exceptions which are provided to the buyer in KV tempter that we had discussed yesterday. If you have any query, you can ask. Otherwise, we will move on to our next topic. Yes. Shubhada, please turn off your mic. Mute your mic. Shubhada Lokhande. Shubhada. Shubhada Lokhande, mute your mic. It is creating disturbance. Okay, she has just logged in. Just a moment, we will start. सर Yes. सर वो एग्जाम फॉर्म आ गए ना, तो हमें कैसे भरना है? क्योंकि एलिजिबिलिटी नंबर लगेगा ना उसके लिए। Yes, sorry for the delay. Yes, Advait, you were asking something. सर वो एग्जाम फॉर्म आ गए ना, Yes, yes. तो वो कैसे ये करना है? क्योंकि एलिजिबिलिटी नंबर लगेगा ना उसके लिए, अगर नया खोलना है। आज हम लोग आपको सब बता देंगे उसका। ओके, आज हम लोग सब क्लियर कर देंगे। कल शाम तक तो नहीं हुआ था, 5 बजे तक हम लोगों ने चेक किया, तब तक सेकेंड ईयर का शुरू हुआ था, फर्स्ट ईयर का नहीं। ओके, जैसे ही आज हम लोगों को कुछ और नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग इमीडिएटली आपको डाल देंगे, ठीक है? ओके। And in case of any query related to exam form filling, either you can contact me or you can contact your mentor or you can contact Sachin sir. ठीक है, किसी को भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर 11 यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। ओके, ठीक है, 11 बजे तक शायद सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों का फॉर्म शुरू हो गया तो वी विल पोस्ट notice on the WhatsApp as well as we will mail you that notification. And in case of any query, you can give us a call. No problem. ओके सर। Okay. So we were talking about the KV tempter. Any doubt related to KV tempter? No, sir. Okay, very नो good. सर। Very good. So we will now start with transfer of property or transfer of ownership. I hope that you have studied on this particular topic. What is transfer of property and what is or ownership in property.
So there are three stages in performance of contract of sale by the seller, which are transfer of property in the goods, delivery of goods or transfer of possession of goods, and passing of the risk. So whenever there is a contract of sale between the seller and the buyer, that particular contract or agreement involves three stages. So these three stages we will be discussing now. Who will start the discussion? If you have read about it, whatever you have read, you can share your ideas, what you have understood on transfer of property in goods, about these three stages of contract of sale of goods between seller and buyer. तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है तीन स्टेजेस के बारे में, तो आप लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं. Yes, you can unmute yourself and we can start with the discussion. Sir, what I have read about this particular topic, that my understanding says that the ownership of the property is transferred from the one hand to another hand, which we call as a transfer of property. So it can be a good, it can be a property, like if I buy any property or plot or flat from someone. In this stage, maybe I'll pay half, and the half payment will be paid later on. But in the owner jo hai, he give possession of this particular property which I am buying from them. So it can be a transfer of property, and we will get possession, but physically property will be hand over later. I'm just trying to give the example what I have understood. I'm not sure I'm correct or not. Okay, no problem. Very good. Yes, anyone else? We are talking about transfer of property or ownership. Yes, anyone else? Sir, I think after the transfer of the property, the risk is passed on to the owner. It is not with the seller. Okay, correct. Okay. What is transfer of property? What is transfer of property? Whatever you are saying is correct. After the transfer of property, the risk is transferred from seller to buyer. It is correct. But what is owner transfer of property? Yes, Advait. Sir, it should be land or flat. हाँ. Means अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बना रहा हूँ तो मैं एक से ज्यादा लोगों को दे सकता हूँ. इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं. Okay. Anyone else would like to add anything? ठीक है, कोई नहीं. हाँ. Yes. Please go ahead. सर, जब मतलब ये ट्रांसफर होगा कोई भी गुड्स या प्रॉपर्टी या कुछ भी, तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी ट्रांसफर होगी. अच्छा. हाँ. The transfer of property means what constitute a transfer and the conditions attached to that. So transfer of property includes the condition or terms attached to that particular contract, right? Yes, sir. ऐसा ही बोल रहे हैं ना? Yes, sir. Yes. Okay. Now, which type of goods are included in contract of sale of goods? कौन से टाइप के गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में? ये समझना बहुत जरूरी है. कौन से हैं वो? कौन से टाइप के गुड्स? We had discussed. Property also, I mean the land or लैंड हो सकता है सर. उसके बाद जो हम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एनीथिंग. हाँ. तो इट कैन बी, मतलब कोई भी गुड्स हो सकते हैं. यस, एनीथिंग. मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकते हैं, मैकेनिकल गुड्स हो सकते हैं, टॉयज हो सकते हैं, या कुछ भी गुड्स हो सकते हैं. यस. इवन लेबर्स आल्सो. इवन लेबर्स.
मतलब हाँ मतलब अगर कोई अभी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हाँ क्लीनिंग डिपार्टमेंट, दैट इज हाँ आल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी फोर्सेस भी होते हैं हाँ जो हाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगेंगे, वो भी हाँ। होता है उसमें। तो ये भी क्लीनिंग सेल ऑफ मटेरियल भी, गुड्स में कर सकते हैं क्या? मतलब क्लीनिंग मटेरियल आप बोल रहे हैं या क्लीनिंग मत करने वाले लोग बोल रहे हैं? क्लीनिंग मटेरियल और लोग भी रहेंगे ना सर, क्योंकि उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं ये हाँ सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूँ, ये भी हाँ। इसमें ही आएगा ना सर। ओके ओके ओके। और कोई? Anyone else would like to add anything? So now 3-4 students have started participating. Very good. Anyone else? Please remember, I have been repeatedly telling you it's a technical subject. So you need to understand the concept of particular terms. If you are unable to understand that concept, you will not be able to write answers in examination. बहुत मुश्किल होगा आंसर देना एग्जाम में. Law is a high scoring subject, as well as if you do not know it, then it is a very low scoring also. तो रिजल्ट कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छा आता है और कुछ का फिर बहुत ही खराब आता है. तो प्लीज रिमेंबर दैट थिंग. अच्छा, when we had started with, now I think there is some confusion related to what is included in contract of sale of goods. I'll again clear that confusion. In contract of sale of goods, only movable goods are included. Immovable goods such as land or flat or plot which cannot be moved, these goods are not included in contract of sale of goods 1930. There is a separate contract or separate law created for the sale of these immovable goods, and that is called as contract of transfer of property act. Transfer of property act. So that is not included in our syllabus, so we will not be concentrating on that. So sale of goods में कौन से goods हैं? सिर्फ वो goods जो movable है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे वो मैकेनिकल गुड्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो, या कोई भी प्रकार के गुड्स पर मूवेबल. इमूवेबल नहीं. लैंड इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. देन this plot is not included in contract of sale of goods. Sale of house, selling of house is not included in sale of goods. तो ऐसा जो भी गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह, सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि जिसे हम लोग मूव कर सकते हैं, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. बट दोज व्हिच कैन नॉट बी मूव्ड, such type of goods which are immovable in nature, they cannot be included in contract of sale of goods. They will be covered under Transfer of Property Act, which is not asked in our syllabus, so we will not be going into the detail of what is included and how transfer of property is done in Transfer of Properties Act. At the start of this chapter, I have told you that whenever the word property will be used, जब कभी भी सेल ऑफ गुड्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी शब्द का यूज होगा, तो हमेशा हमारे को क्या समझना है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप. So transfer of property doesn't mean here that we have purchased the plot and when the transfer deed is signed, that is called as transfer of property. यहां पे वो अर्थ नहीं है. यहां पर वो
इंक्लूड नहीं हो सकता। यहां पर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ओनरशिप। सपोज इफ आई वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, I went to a mobile store. I selected a mobile of 15,000. I paid the price 15,000 to the seller, and seller gave me the mobile phone. So here in this case, it will be called as transfer of property from seller to buyer. यहां पे प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। Till I pay 15,000 in return of a mobile which I intend to buy, the owner will be seller. Seller will be the owner of that particular mobile phone. But the moment I pay him 15,000 rupees and he gives me the mobile phone and bill of that mobile phone, the other attached document related document, that is the guarantee card or the other related document, when he hands it over to me, we can say that there has been now exchange or transfer of ownership from seller to buyer. मैंने 15,000 रुपए जैसे ही दिए, अब उस मोबाइल फोन का ओनर कौन है? अब उस मोबाइल फोन का ओनर मैं हूं, मतलब बायर। जब तक मैंने पैसे नहीं दिए थे तब तक उस मोबाइल फोन का ओनर कौन है? सेलर, क्योंकि उसकी दुकान है, उसकी दुकान में जितना भी माल है वो सब किसकी ओनरशिप का है? सेलर की ओनरशिप का है। मैंने एक मोबाइल पसंद किया, मैंने 15,000 रुपए दिए, अब उसने मुझे बिल और मोबाइल फोन दे दिया, बदले में उसने 15,000 रुपए ले लिए। जैसे ही उसने 15,000 एक्सेप्ट किए, जैसे ही मुझे मोबाइल मिला, जैसे ही बिल मिला, इमीडिएटली ओनरशिप हैज बीन चेंज्ड, and that is in other words also called as transfer of property. तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, तो यहां पर प्रॉपर्टी का मीनिंग ही है ओनरशिप। तो इस केस में क्या हुआ है? यहां पर अगर लीगल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर ऑफ मोबाइल फोन, और सिंपल लैंग्वेज में ओनरशिप चेंज हुई है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी always means in contract of sale of goods transfer of ownership. हमेशा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को हमने क्या समझना है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आई होप दैट नाउ दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, क्योंकि अगर आप, आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाटएवर यू आर सेइंग एज पर, अगर हम लोग जनरल व्यू देखेंगे तो इट इज करेक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जितना भी हम लोग सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब प्रॉपर्टी कौन सी रहती है? प्लॉट्स है, फ्लैट्स है, हाउस है, वो जनरल मीनिंग वो। पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। और यहां पर हम लोग फ्लैट, हाउस इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट मूवेबल गुड्स। यहां पर वो इंक्लूड ही नहीं है। यहां पर वो दूसरे सारे गुड्स, चाहे आपका वुडन फर्नीचर हो, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, या फिर आपके कुछ भी सोफा हो, दरवाजे हो, खिड़कियां हो, कोई भी गुड्स which is transfer, which is movable, that can be included, but those which are not movable, they are not included here. If you are still having any doubt, please ask me. I am ready to share another example also. अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे जाएंगे, नहीं समझा है तो हम लोग अभी और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। बोलिए, समझ गए अभी आप लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? Yes. अभी What is क्लियर हो गया सर।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, एक बार It's बताइए। ownership. वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑलवेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पर Ownership. ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए ही है, Yes. यहीं पर है ये, आगे नहीं। यहीं पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ऐसा बताया गया है, ऐसा लेड डाउन है कि व्हेनेवर द वर्ड प्रॉपर्टी इज यूज्ड इट इज टू बी टेकन एज ओनरशिप, राइट? चलो, वेरी गुड। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ who will explain me transfer of property in goods with an example? Now you know what is transfer of property. अब ये तो आपको पता चल गया है, ठीक है? अब मुझे बताइए एक एग्जाम्पल के साथ कि हाउ यू विल एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। Sir, for example, I'm buying Yes. some electronic gadget or something from Okay. a seller. Okay. So it is a movable good. And Absolutely. once I Yes. buy it, Yes. the ownership will be with me. Yes. Very good. So that will be called as transfer of property Transfer of in goods. ownership. Yeah. Very good. You went to a mobile shop, you selected a mobile, you paid for that mobile, and after paying, you became the owner of that mobile. Now seller ceases to be the owner of that mobile. Now the new owner of that mobile is you. Very good. It is absolutely correct. And that is called as transfer of property in goods. Transfer of ownership in goods. Now the second one. सबको समझ में आ गया पहला पॉइंट? Yes, sir. Yes, very good. Now the second point is delivery of goods or transfer of possession of goods. Now who will explain me this? Transfer of property or transfer of ownership is one thing. The other thing is delivery of goods or transfer of possession of goods. Who will be explaining me this? सर डिलीवरी ऑफ गुड्स में हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपन ये करते हैं ना, लेते क्या? हैं और सेल करते हैं। ओके ओके, क्या होगा? आप एक एग्जांपल दीजिए मुझे। अगर मुझे बहुत सारे बिस्किट खरीदने हैं हाँ, एक एजेंसी से, तो मैं उनके साथ ओके, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मैं ये बिस्किट 6 मंथ तक आपसे लूंगा, और हाँ, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इतना इतना बिस्किट्स परचेस करूंगा आपसे। ओके ओके, आगे? फिर वो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे वो डिलीवरी मिलेगा गुड्स का, हाँ हाँ बिस्किट्स का, हाँ, और उसमें सब प्राइस और वो सब कुछ वेरी होगा अकॉर्डिंग टू दैट। ये अच्छा आगे का अच्छा, है, हाँ हाँ, बस यही। ओके। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग देखेंगे, बहुत मतलब ज्यादा भी बड़ा एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी सपोज पहला ही एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे अभी पहला एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल क्या था कि बायर वेंट टू दी मोबाइल शॉप, paid for that mobile, got that mobile. Now the buyer has become owner of that mobile. ठीक है? So that is called as transfer of property in goods. Now we are talking about delivery of goods. Delivery of goods means मोबाइल का पैसा बायर ने दे दिया है, पर अगर सेलर उसे बोलता है कि ये शाम तक मोबाइल मैं आपको घर पे आपके पहुंचा दूंगा, तो दैट विल बी, जब वो घर पे मोबाइल आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्योंकि पैसा मिल गया, अब वो मोबाइल का ओनर बायर है, पर अब उसको पोजीशन तब नहीं मिली है
क्योंकि जो कलर बायर को पसंद था, बायर को पसंद है ब्लू कलर, और तब ब्लू कलर अवेलेबल नहीं था। सेलर ने क्या बोला, आप पैसे दे दीजिए, इसी मॉडल का ब्लू कलर में मैं आपको शाम तक आपके घर पे पहुंचा दूंगा। तो शाम को जब वो प्रोडक्ट घर पे पहुंचेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पहले ही हो गई। कब होती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? जब हम पैसे देते हैं। और डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब क्या है? कस्टडी ऑफ गुड्स। जब फिजिकली वो गुड्स हमारी कस्टडी में आते हैं, तब हम लोग उसे बोलेंगे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। अब मुझे अगर सपोज फर्नीचर, एक सोफा सेट पसंद आया, पूरा सेट 20,000 का वो सेट था, मैंने 20,000 शॉपकीपर को दे दिए, जिसका वो शॉप है उसका, सेलर को, और सेलर ने मुझे बताया कि आप अपना एड्रेस लिखा दीजिए, शाम तक आपके घर पे ये सेट पहुंच जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब हुई? जब मैंने पैसे दिए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। पर फिजिकल पोजेशन कब मुझे मिलने वाली है? शाम को। सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट? समझ गए अभी आप लोग? सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन पेमेंट इज डन, डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन द बायर फिजिकली रिसीव्स द गुड्स। अगर हम सर लोग बट पार्डन मी, ये बोलो, स्पेसिफिक गुड्स के लिए होगा ना? मतलब अभी हम मोबाइल ही ले रहे हैं, और कोई भी हो सकता है, कोई भी गुड्स, दूसरा कोई भी गुड्स बताओ आप। अगर आपको जो पसंद है वो बोलिए। नहीं मतलब मोबाइल हो गया तो ये स्पेसिफिक गुड्स में आएगा ना कि मोबाइल ही लेना है, और अलग अलग लेने तो वो किधर जाएंगे फिर? अलग अलग मतलब मैंने मोबाइल लिया, लेने, हेडफोन्स लेने, स्पीकर लेने, तो ये कैसा होगा? फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेम वे या डिफरेंट? नहीं, सेम वे में 15,000 का आपका मोबाइल हुआ, 2,000 के आपके हेडफोन्स हुए, और जो भी आपके एक्सेसरीज और आपको लेनी है एक्स्ट्रा, वो 1,000 रुपीज का, टोटल 18,000 रुपीज हो गया, या 19,000 हुआ। आपने 19,000 जैसे ही पे किया, यू बिकम ओनर ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर गुड्स। तो फोन के भी ओनर आप हो गए, हेडफोन के भी ओनर आप हो गए, और अदर एक्सेसरीज के भी ओनर आप हो गए। कब हो गए? जब आपने पैसा पे किया। आप एक गुड्स लें, आप 10 गुड्स लें, या आप 100 गुड्स लें, या आप उससे ज्यादा लें, when you pay the money you become the owner of that particular goods। वो एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। अगर आप 10 मोबाइल ले रहे हैं, 10 मोबाइल का आपने उसको पैसा पे कर दिया, मतलब आप 10 मोबाइल के ओनर बन गए। अब सेलर के पास 3 मोबाइल हैं, 7 मोबाइल वो बोलता है कि मैं आपको शाम तक घर पे दे दूंगा, 3 मोबाइल अभी आपको देता है। तो यू हैव गॉट द फिजिकल कस्टडी और डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ 3 गुड्स। 3 गुड्स का आपको डिलीवरी मिल गया। ओनर आप कितने गुड्स के हैं? 10। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कितने गुड्स की हुई? 10, क्योंकि आपने 10 मोबाइल का पैसा दिया है। पर जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई है वो अभी 3 की हुई है। शाम को या कल या परसों जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, उस हिसाब से जब आपको रिमेनिंग 7 मोबाइल आपके एड्रेस पे मिल जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके सर, गॉट इट। ठीक, चलो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, पासिंग ऑफ द रिस्क। पासिंग ऑफ द रिस्क। अब रिस्क का क्या मतलब होता है? व्हाट इज रिस्क? Who will explain me this passing of risk? Now we have seen 2 things. One, that there was transfer of property, means transfer of ownership. Second is that the buyer has got the delivery at his place.
मतलब ओनरशिप पैसे दिए चेंज हुई, बायर घर पे पहुंचा, 10 मोबाइल उसको घर पर मिल गए शाम को, तो डिलीवरी भी कंप्लीट हो गई। तो ही इज नाउ not only the owner of those 10 phones, but the buyer is now actually in possession of those 10 phones also. तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। पहला क्या हुआ, पैसे दिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई। दूसरा, 3 मोबाइल तभी मिल गए थे मॉर्निंग में ही जब पैसे दिए 10 मोबाइल के, और रिमेनिंग 7 शाम को 5 बजे मिलने वाले थे। शाम को 5 बजे रिमेनिंग 7 मोबाइल घर पे मिल गए बायर को। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पहले ही हो गई थी 10 बजे मॉर्निंग में पैसे देने के साथ ही, और डिलीवरी ऑफ गुड्स और कस्टडी ऑफ गुड्स उसे कब मिल गई, शाम को 5 बजे, रिमेनिंग 7 मोबाइल की। अब तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज पासिंग ऑफ रिस्क। Sir, I think Risk. if the goods हाँ. are damaged, हाँ, वेरी गुड। but लेकिन जब we are paying, हम जब ओनर हो जाते हैं हाँ हाँ, तो रिस्क हमारे पास आ जाता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन केस ऑफ पोजीशन, आई थिंक पोजीशन के बाद फिर वो रिस्क हमारे पास आएगा। अच्छा, ठीक है, वॉट एवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब वो गुड्स हमारे तरफ पास आ जाएगा तो वो रिस्क हो जाएगा। अगर उसको कोई डैमेज हो गया ड्यूरिंग डिलीवरी और हमने चेक नहीं किया तब, दैट्स द रिस्क अच्छा, ठीक ऑफ है। द प्रोडक्ट। अच्छा, अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, आपने मुझे बताना है कि रिस्क किसके पास है, रिस्क कौन उठाएगा। रिस्क उठाना मतलब डैमेज अगर हो गया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है या बायर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेलर रिस्पॉन्सिबल है या बायर रिस्पॉन्सिबल। अब फर्स्ट एग्जाम्पल, बायर went to the electronic showroom and he purchased a washing machine. वॉशिंग मशीन उसने खरीदी, पैसे दे दिए, और सेलर ने बोला कि 5 बजे तक शाम को मशीन आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। जब मशीन ट्रांसपोर्टेशन में थी, मतलब जब टेम्पो जा रहा था मशीन लेकर, तो टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया, टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया और मशीन डैमेज हो गई। घर पे अभी तक बायर के पहुंची नहीं है मशीन, मशीन डैमेज हो गई। तो जब वो डैमेज्ड मशीन घर पे बायर के पहुंची तो बायर ने लेने से मना कर दिया कि मैंने तो एकदम क्लियर मशीन ही पसंद की थी, मुझे वैसी ही एकदम वैसी ही बिना किसी डैमेज के मशीन चाहिए। वो रिजेक्ट कर देता है, सेलर के पास जाता है कि मुझे वैसी ही मशीन चाहिए, मुझे ये मशीन नहीं चाहिए। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इस डैमेज के लिए? सेलर को देना ही पड़ेगा क्या, या फिर सेलर बोल सकता है कि नहीं नहीं, आपने पैसे दे दिए, ओनरशिप आपकी है, तो रिस्क भी आपका है, अब मेरा कोई रिस्क नहीं है इसमें इन्वॉल्व। नो सर, डिलीवरी होने के बाद अगर कुछ होता है तो देन बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अभी तो डिलीवरी में ये एक्सटेंड हुआ है, तो आई थिंक सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, डिलीवरी में ही अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो सेलर इज यस, जब तक कि रिस्पॉन्सिबल आया नहीं। सर गुड्स इन ट्रांजिट था तो सेलर करेगा ना सर। गुड्स इन ट्रांजिट है, वेरी गुड। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट में है, अभी तक पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, तो सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यस सर, बराबर है, सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होगी। सो हियर व्हेनेवर द क्वेश्चन ऑफ पासिंग ऑफ रिस्क अराइजेस, one thing which is to be understood is what type of condition or what type of terms that were used in contract of sale of goods. अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर सपोज जो मशीन का प्राइस है, जब बायर ने वो मशीन फाइनल की, बायर ने मशीन फाइनल की, जब वो नेगोशिएट कर रहा था, वो मशीन 18,000 की थी,
सेलर ने बायर को बोला कि ये 18,000 की मशीन है। बायर ने नेगोशिएट करना सेलर के साथ शुरू किया और नेगोशिएट करते 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 15,000 पे फाइनल हो गया डील। अब बायर सेलर को बोलता है कि 15,000 मैं दूंगा, डिलीवरी भी आपकी तरफ होगी, आप मेरे घर तक पहुंचाइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो 500 रुपए लगेगा वो भी आप ही खर्च कीजिए। अब सेलर बायर को बोलता है कि ऑलरेडी 3,000 रुपए मैंने आपको मशीन पे कम कर दिए हैं, तो मैं डिलीवरी चार्ज अलग से लूंगा, या तो फिर आप अपना टेम्पो मंगाइए और अपने टेम्पो में वो मशीन आप लेके जा सकते हैं। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा और बायर बोलता है ठीक है मैं अपना टेम्पो मंगा लेता हूं, वो 400 रुपए ले रहा है, मैं उसको 400 रुपए देके अपने घर पे ये मशीन लेके जाता हूं। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है या बायर? वापस से जब जा रहा है टेम्पो तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मशीन डैमेज हो जाती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल नाउ? बायर। सर बायर। Very good. So we have to understand first that what were the terms and condition of the contract of sale. Then only we can fix out the passing of risk, whether risk should be taken by the buyer or risk should be taken by the seller. ठीक है, सेलर। नाउ एक और एग्जांपल टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर। जब बायर मशीन खरीद लेता है, अभी उसी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मशीन खरीद लेता है और सेलर बोलता है कि ठीक है आई एम रेडी टू गिव यू द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए मैं तैयार हूं आपको, पर अभी मेरा टेम्पो बाहर गया हुआ है, तो एक काम करूंगा मैं, आज तो नहीं हो पाएगी डिलीवरी, मैं आपको कल दोपहर तक डिलीवरी कर दूंगा वॉशिंग मशीन। बायर एग्रीज एंड इन द नाइट, शाम को, रात को जब शोरूम बंद हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है और काफी सारा माल सेलर का जल जाता है। वो माल जो जला है उसके अंदर ये जो बायर ने पसंद की हुई वॉशिंग मशीन है ये भी जल जाती। अब बायर जब अगले दिन फोन करता है सेलर को कि आफ्टरनून में आपने बोला था, बायर को नहीं पता है कि क्या हुआ है। बायर अब फोन करता है सेलर को कि आपने बोला था दोपहर को 12 बजे तक आ जाएगा, पर अभी तक आपका ट्रांसपोर्टेशन आया नहीं है, मतलब मशीन नहीं आई है, तो कब तक आएगी? तो सेलर उसे बताता है कि मशीन तो आपकी जल गई है, आग लग गई थी, मुझे बहुत नुकसान हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा आपको। अब इसमें रिस्क किसके पास है, बायर के पास या सेलर के पास? बायर तो पैसे दे चुका है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुकी है, बट फिजिकल पोजेशन मिलना बाकी है। कल ही उसने 15,000 रुपए मशीन के दे दिए, टर्म कंडीशन सब क्लियर हो गए, पर रात को आग लग गई और आग में वो मशीन जल गई। अब बायर के पास रिस्क है या सेलर के पास? सेलर के पास। सर सेलर के पास। सेलर के पास। वेरी गुड, सेलर के पास। So we have to, very good. So we have to first understand the terms and condition of contract of sale. If there are no specific terms and condition in the contract of sale of goods, then always whenever the transfer of property takes place, it takes place with the risk. अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन वहां पर लिखा हुआ नहीं है तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, तो उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अब सपोज मोबाइल फोन मैंने खरीद लिया एज बायर, 15,000 रुपए दिए, मोबाइल फोन मैंने ले लिया। जैसे ही मैं मोबाइल के शोरूम से बाहर निकला, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया, किसके पास रिस्क है? किसके पास रिस्क है? मेरे पास, मतलब बायर के पास। बायर को लॉस हुआ या वो सेलर से क्लेम कर सकता है कि नहीं, तुम्हारे शोरूम के बाहर ही चोरी हुआ है तो अब मुझे नया दो?
नहीं तो सर, नहीं वायर कर के पास। सकता। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. Now we will move on to the next slide. Now the determination of exact moment as to when the ownership passed from the seller to buyer is important for the following reasons: risks of the property, insolvency, damages, and suit for price. Now two things we have already covered. First one is risk of property and the second one is damages. Now we will talk about insolvency. Insolvency. Insolvency का क्या मतलब होता है? Bankrupt, दिवालखोर, दिवालिया होना, that is insolvency. In case of insolvency, who is at the risk? तो अगर सपोज बायर ने मोबाइल फोन खरीदा और वो इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है, 50,000 रुपए का मोबाइल फोन है और 2,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, 5,000 रुपए का डाउन पेमेंट वो भर चुके हैं. ठीक है, तो 5,000 रुपए का डाउन पेमेंट दिया, 2,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट हर महीने वो भरेंगे. 3 महीना वो इंस्टॉलमेंट भरते हैं, चौथे महीने में उन्हें बिजनेस में बहुत लॉस होता है बायर को और बायर बैंकरप्ट हो जाता है. तो अब क्या सेलर बायर से वो फोन क्लेम कर सकता है? बोलिए. नहीं कर सकता. नहीं कर सकता या कर सकता? नहीं कर सकता. ओके, क्यों नहीं कर सकता? रीजन क्यों नहीं कर सकता? क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ गुड्स में? लोन और कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ है. एब्सोल्यूट मतलब कि पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या पूरा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है. पूरा ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जब 50,000 रुपए सेलर को पूरे मिल जाएंगे तब. अब यहां पर क्या हुआ है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है बट कंडीशन अप्लाइज कि 10 महीने में, 15 महीने में, 24 महीने में जो भी कंडीशन है, जो भी टर्म्स हैं, उसमें आपको 2-2 हजार करके ये 50,000 रुपए चुकाने. जिस दिन आप ये चुका देंगे उस दिन you will be the real owner of this mobile. By the time it is in your possession, the ownership has transferred, both things are correct, but that ownership is not absolute ownership. वो रियल ओनरशिप पूरी तरह से नहीं होगी. अगर आप बीच में पैसा नहीं देते हैं तो क्या होगा? मोबाइल सेलर आपसे वापस ले सकता है. मोबाइल सेलर आपसे वापस ले सकता है. जैसे अभी कार खरीदी, सपोज बायर एक कार खरीदता है. बहुत सारे अभी रिसेंट ये लॉकडाउन में ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत ज्यादा, कि किसी ने कार खरीद ली, बैंक से पर्सनल लोन लिया या कार लोन लिया, कार खरीदी, कार के इंस्टॉलमेंट्स आए, जॉब चली गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए. अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है तो क्या होता है? सेलर छोड़ देता है क्या? या फिर वो कार उठा के ले जाते हैं वो लोग? बैंक छोड़ देती है क्या? या फिर वो कार का पोजीशन अपने पास लेके दूसरी किसी पार्टी को ऑक्शन में बेच देते हैं और ऑक्शन में बेच कवर कर लेते हैं. ऑक्शन में तो सेलर क्या करता है? जो सेलर है वो क्या करेगा? छोड़ देगा क्या वो पैसा, या वो कार उठा के लेके आ जाएगा और फिर वो उसे ऑक्शन करके बेचेगा? अगर कार लेके आएगा, हाँ, ऑक्शन में कार बेचेगा सर. ऑक्शन तो में कार, बैंक ऑक्शन में कार बेचेंगे. क्यों बेचेगी? हाँ, अगर बैंक से लोन लेके मैंने कार ली है और मैं उसको देने के लिए दे नहीं पाया पूरा लोन, तो बैंक ये करेगी ना ऑक्शन की. बैंक here we are assuming bank as seller and buyer as the person who has got that loan. यहाँ पर हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सेलर एक बैंक है और बायर जिस व्यक्ति ने वो कार ली. क्या कंडीशन है? जैसे ही उसने कार का पोजीशन तो ले लिया, उसने कार का पोजीशन लिया, डाउन पेमेंट भरा, कार उसके नाम पर भी हो गई, पर
एब्सोल्यूट ओनरशिप कब होगी, पूरी ओनरशिप कब होगी, जब वो पूरा पैसा चुकाएगा। जब वो पूरा पैसा अगर नहीं चुकाता है तो फिर वो रिकवरी हो सकती है। Now last one is suit for price. What is the meaning of suit? Suit for price. Suit का क्या मतलब है? अगर suit का मतलब पता है आपको तो बाकी बहुत इजी है। What is suit? SUIT. File a case. Yes, very good. Case करना या to file a case is called as suit. Here, the seller is having a option if the buyer is not paying the amount which was agreed upon at the time of contract of sale of goods, then the seller is having every right that he can file a suit for price against the buyer. जैसे हमने देखा कि अब मोबाइल वो नहीं पे कर रहा है बाद में, क्यों नहीं पे कर पा रहा है? क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया। तो फिर सेलर के पास क्या ऑप्शन है? सेलर के पास एक ऑप्शन कि वो मोबाइल उसका वापस ले सकता है। अगर वो पोजीशन नहीं दे रहा है मोबाइल की, तो फिर दूसरा ऑप्शन सेलर के पास क्या है कि ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द बायर and that case will be called as suit for price. That we will be discussing in detail when we will be talking about unpaid seller. जिस भी सेलर को पूरा अगर गुड्स का पैसा नहीं मिलता है, आधा पैसा मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है, that seller is called as unpaid seller. तो अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं, that we will be discussing when we will be talking about the meaning of unpaid seller. मोबाइल फोन दिया, 1000 रुपए भरे उसने, बहुत सारे आजकल ये रहते हैं ना ऑफर्स कि 0 इंटरेस्ट पे यू कैन बाय अ मोबाइल फोन और जस्ट पे 1000 रुपीज एंड पे द रिमेनिंग अमाउंट इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। तो 1000 रुपीज बायर ने पे किए और अगले 10 इजी इंस्टॉलमेंट्स का उसने फैसिलिटी ले लिया। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि द बायर हैज टू पे द इंस्टॉलमेंट्स इन टाइम। इफ ही डजंट पे देन द सेलर विल बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर। जब सेलर को अपने गुड्स के बदले में पूरा प्राइस नहीं मिलता है, पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, तो दैट सेलर इज कॉल्ड एज अनपेड सेलर। And one of the right of unpaid seller is if the buyer is refusing to pay the price of the goods which he has bought or which he has purchased, then seller is having a right that he can file a suit in the court of law against the buyer, and that suit will be called as suit for price. Now we will just discuss in brief about the delivery of goods or the types of delivery. First one is actual delivery, second one is symbolic delivery, and third one is constructive delivery. Oh, sorry. Before that, the performance of contract of sale. Under performance of contract of sale, for seller, performance of contract of sale means the delivery of goods, and for buyer it means acceptance of the delivery of goods and to make the necessary payment of the goods he purchases according to the terms and conditions of the contract of sale. तो contract of sale कब पूरा होता है? जब बायर सेलर को पैसा दे देता है और सेलर बायर को वो गुड्स उसकी पोजीशन में, उसकी कस्टडी में सौंप देता है। So there is performance of contract of sale of goods. The moment buyer pays the amount of that good, he becomes the owner, and the sale of goods gets completed when he actually receives the goods in his possession, and that is called performance of contract of sale.
Now, actual delivery, symbolic delivery, and constructive delivery. Actual delivery is very, very, very easy. क्या रहता है actual delivery? We have already just discussed. Yeah, actual position Actual of the delivery goods. means, huh? Actual position of the goods to the buyer. Actual possession of goods with the buyer is called as actual delivery. Very simple. Seller, बायर गया, उसे एक रेफ्रिजरेटर खरीदना था, 20,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर है, 20,000 रुपए उसने पे कर दिए। जैसे ही उसने पे किए, उसके नाम पर बिल बन गया। कौन बन गया ओनर उस रेफ्रिजरेटर का? भी सेलर था पहले, पर बिल पे करते के साथ ही बायर उसका ओनर हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहाँ पे कब परफॉर्म होगा या कब पूरा होगा? जब ये फ्रिज सेलर वहां पर पहुंचा देगा। किधर पहुंचा देगा? बायर के घर पे पहुंचा देगा। अगर बायर बोलता है कि मेरा खुद का टेम्पो है, मैं लेके चला जाऊंगा, आप 500 रुपए डिस्काउंट कीजिए, और वो 20,000 का फ्रिज अगर ट्रांसपोर्टेशन कट करके 19,500 में अगर वो बिल बना के दे देता है, तो यहाँ पर पोजेशन कब होगा? यहाँ पे कब खत्म हो जाएगा? जैसे ही वो फ्रिज टेम्पो में, किसके? बायर के टेम्पो में वो लोड हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो गया। बिकॉज he himself has put that condition that he has a tempo, so just give that refrigerator and he can take the refrigerator in his tempo and to his place. So that is called as actual delivery. Actual delivery means actual possession of goods by the buyer, actual custody of goods by the buyer. Now the second one, symbolic delivery. Symbolic delivery. Now everyone is aware of symbolic delivery. ये symbolic delivery क्या रहती है? Symbolic, अगर हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सांकेतिक डिलीवरी. Symbolic delivery. What is symbolic delivery? refer to good delivery और of सबको goods पता by है? way. Can you come again? Yes, yes. Can you come again? Refer to delivery of goods बोलो by बोलो. way of gift or sales. Can you give me an example? ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है, पर आप मुझे एग्जाम्पल दे के समझाइए, ताकि सबको क्लियर हो जाएगा। सबको पता है सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है। एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। सिंबॉलिक डिलीवरी। So is Gift, it like sir. हाँ, Kind of gift. Symbolic काइंड delivery. ऑफ गिफ्ट। हाँ बोलिए ना, पूरा एग्जाम्पल बोलिए। अगर मैंने काइंड ऑफ गिफ्ट कैन फॉर बी, एग्जांपल अगर मैंने कोई शेयर खरीदा है और मुझे आपको वो देना है, हाँ, दैट मैं आपको दे दूंगा वो शेयर एज अ गिफ्ट, ये हो गया सिंबॉलिक डिलीवरी। हाँ, अच्छा, सर अगर मैंने कोई ये होगा सिंबॉलिक डिलीवरी। हाँ एंड उसका जो की हाँ गिफ्ट देना चाह रही हूँ, मैं उसको की दे रही हूँ, तो आई थिंक इट विल हाँ। काउंटर एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। कैन यू एक्सप्लेन द एग्जांपल अगेन? यस, लाइक अगर मैंने कोई कार खरीदी है एंड आई वांट टू वेरी गिफ्ट गुड। टू हाँ एंड हाँ आई मीन कार डिलीवरी होने के पहले मैं उसे उस कार का की दे रही हूँ, तो हाँ, सिंबॉलिक डिलीवरी। very good. It is absolutely correct. This is called as symbolic delivery. So instead of actually presenting the car, you are delivering, you are handing over the keys of the car, symbolizing that you have gifted him a car. Very good. अभी जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच जो रहता है, उसको 1 लाख का चेक, 5 लाख का चेक,
या फिर ऐसा कुछ चेक दिया जाता है ना, तो वो चेक कैसा रहता है? कैसा रहता है वो चेक? अभी यार क्रिकेट तो सभी देखते होंगे ना, कोई भी मैच, क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल, मैन ऑफ द मैच को एक बड़ा सा, बहुत बड़ा एक कागज का चेक उठा के, या फिर वो यस सर, फोम होल्डिंग शीट टाइप का रहता चेक है, रहता है। होल्डिंग टाइप हाँ, वो रहता है फोम बड़ा। शीट का चेक, वो सिंबॉलिक चेक है, दैट इज कॉल्ड एज सांकेतिक। अब वो चेक लेके थोड़ी प्लेयर जा सकता है कि बैंक में ये लो, ये चेक सबमिट करो, तो बैंक में डिपॉजिट होने वाला है क्या वो चेक? तो वो चेक सिंबॉलिक है। अब सिंबॉलिक डिलीवरी क्यों की जा रही है? जब एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, या फिर वो नहीं वो करना चाहते एक्चुअल डिलीवरी बाद में होने वाली है, तो सिंबॉलिक डिलीवरी। अब अगर छोटा सा चेक 1 लाख रुपए का रियल चेक, हाँ रियल चेक, अगर रियल चेक 1 लाख रुपए का देंगे तो शायद वो जूम कर करके दिखाना पड़ेगा, और दिखेगा भी नहीं, कौन सी बैंक का है उसका लोगो नहीं आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए लोगों को पता चले, दूर से दिखे, इसीलिए क्या कर रहे हैं वो, एक बड़ा सा फोम शीट, उसके ऊपर उन्होंने वो चेक बना दिया है, एक डुप्लीकेट चेक को रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल चेक को वो चेक, और वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है, एक सांकेतिक है कि आपने 1 लाख रुपए का असली चेक प्राप्त किया है, जो आपको बाद में मिलेगा, मैच के बाद मिलेगा, या फिर मैच के दौर जब भी वो एग्री होगा तब मिलेगा, पर तब तक कि आपने ये जीता है, इसीलिए आपको एक बड़ा सा चेक दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। नाउ वी हैव ऑलरेडी crossed our time, so we will stop here. Last one, constructive delivery. It will takes say 5-10 minutes to explain, so better if you just can take the screenshot of these 2 slides, delivery of goods and rules regarding delivery of goods, and tomorrow we will continue with that. Just take a screenshot and we will stop now. We will continue with the lecture. If we have lecture tomorrow, then we will continue with that. If we do not have lecture tomorrow, then we will continue it on Monday. So Monday or tomorrow, whenever the lecture will be, please come prepared for what is constructive delivery and what are the rules regarding delivery of goods. Very simple rules are there that we will be discussing. Okay, thank you. Thank you for attending the lecture. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.